Hello everyone, welcome back to my channel. And today we would be talking about two important breast conditions, fibroadenoma and phyllotumor. Fibroadenoma का मतलब क्या है? Fibrous tissue. Adenoma means glandular tumor. It is also known as breast mouse. Why is it known as breast mouse? Because it is palpable. इसको हम palpate कर पाते हैं जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं. उसके बाद बात आती है फाइलोट्यूमर की. फाइलोट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसके कट सरफेस में हमें लीफ बर्ड्स मिलती है, दैट इज वर्ल्ड पैटर्न एंड लीफ बर्ड्स. So let's understand this very easy topic. So let's dive into it. Hello everyone. So let's get into the topic. So fibroadenoma. Fibroadenoma का क्या मतलब है? Fibro means fibrous. Adenoma का मतलब है tumor of a gland. First of all, it is the most common benign tumor of the breast. एज प्रीडोमिनेंस कितना रहता है? 20 to 30 years. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा. इंट्रालोबुलर का मतलब क्या है? हमारा निपल होता है, एरियोला होता है, उसके बाद हमारे लोब्यूल्स होते हैं, और लोब्यूल्स के अंदर हमारे क्या होता है? हमारे लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं. लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सो इट अराइजेस इनसाइड द लोब्यूल्स, सो इट इज इंट्रालोबुलर. क्लिनिकल फीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज अ पाल्पेबल एंड फ्रीली मूवेबल मास. इसलिए हम इसको बाद में ब्रेस्ट माउस भी बोलेंगे. सो इट इज व्हाट? इट इज पाल्पेबल and freely movable. So as you can see in this diagram, this is intralobular, this is the fibroadenoma, and this is the capsule because it is a benign tumor. Then we'll be talking about the morphology. A morphology के अंदर it can be divided into the gross and the cut section. Gross में it can be single or multiple. It can be unilateral or bilateral. It presents as spherical nodules which are well circumscribed and freely movable. वेल सर्कमस्क्राइब्ड क्योंकि एक बिनाइन ट्यूमर है एंड इट इज फ्रीली मूवेबल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मोबिलिटी ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज जब भी हम इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, दैट इज पाल्पेशन करेंगे, उसमें देर इज अ मूवेबल ट्यूमर और मूवेबल मास. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट माउस. इट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. In the cut section, it is rubbery, glistening grayish white. Now you can see in this image, like it looks like rubbery and glistening grayish white. Now, if I talk about the microscopy, the fibroadenoma is a mixture of duct-like structures and fibrous connective tissue. Duct-like structure means they are round, elongate structure plus branching. And there is varying degree of hyperplasia. अब ये तो आपको पता है. Hyperplasia क्या होता है? That is, it is increase in the number of cells which lead to the growth of the tissue. Fibrous connective tissue, it consists of most of the tumor. So the most of the fibroadenoma is consisted of fibrous connective tissue. It is delicate and cellular. If I talk about the microscopic classification, it can be divided into pericanalicular and intracanalicular. So क्या फर्क है इनके अंदर? पेरिकैनालिकुलर के अंदर क्या है कि जो नॉर्मल, दैट इज रेगुलर ग्लैंडुलर कॉन्फ़िगरेशन इज मेंटेन, जबकि इंट्राकैनालिकुलर के अंदर द कनेक्टिव टिश्यू इनवैजिनेट्स, जिसकी वजह से जो ग्लैंडुलर स्पेसेस के अंदर, इसलिए वह ग्लैंडुलर कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट मेंटेन. नाउ यहाँ पे रेगुलर ग्लैंडुलर कॉन्फ़िगरेशन इज मेंटेन, सो द ल्यूमन्स आर patent, that is there is gap in it. So because the connective tissue is invaginated, that's why due to the proliferated ducts, these lumens are compressed, they look like this. Now we talk about the another topic, that is phyllotumor. The definition: it is a circumscribed biphasic neoplasm characterized by double-layered epithelial component arranged in clefts surrounded by hypercellular mesenchymal component. I know कुछ भी नहीं समझा. It's okay. Let's go point by point. It is a circumscribed because it is a benign tumor. Biphasic neoplasm. Why it is known as biphasic neoplasm? क्योंकि it consists of the epithelial component also and the mesenchymal component also. Okay, and it is characterized by double-layered epithelium. Like that, there are double-layered epithelium, and in the cleft there is
mesenchymal component. So there is double layered epithelial component which is arranged in clefts which is surrounded by hypercellular mesenchymal component. Easy na? It is just a lengthy definition. It is not tough. Origin. Origin किधर से होता है इसका? इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा. ओके. हमारा फाइब्रोएडिनोमा का ओरिजिन कहाँ से था? It is also from the intralobular stroma. It all arises from the lobules. The age predominance 30 to 70 years. The clinical feature is also the palpable mass. Ab you tell me ki if there is just a palpable mass in the breast, so it is a benign tumor. We say that. But how can we differentiate that it is a fibroadenoma or a phyloid tumor? There are some characteristics to it. In the fibroadenoma, it is freely movable mouse, and on examination, on the clinical examination, it appears as a breast mouse, right? And in this phyloid tumor, I'll tell you one more characteristic feature which helps us to differentiate. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ग्रॉस के अंदर वी कैन डिवाइड इनटू बिनाइन फाइलोड ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट. अब आप सबको पता है कि भाई बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस होता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं. फिर भी it is sharply circumscribed and it is poorly circumscribed and locally invasive. Malignant poorly circumscribed होता है, locally invasive होता है. The cut surface. The cut surface is the most important point. कैसे? जनरल फीचर्स की बात करो तो जनरल फीचर्स में इट इज अ सॉलिड ग्लिसनिंग ग्रे वाइट बल्जिंग मास, एवरीथिंग सेम फॉर द बिनाइन ट्यूमर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट हैज अ वर्ल्ड पैटर्न. इट हैज अ वर्ल्ड पैटर्न विथ कर्व्ड क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस व्हिच रिजेंबल लीफ बड्स. तो अगर आपको कोई भी क्लिनिकल के सिनेरियो आता है एंड इट इज गिवन दैट ऑन द कट सरफेस देयर आर प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड पैटर्न और द लीफ बड्स, so you can make the diagnosis of phyloid tumor and not the fibroadenoma. माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है? एग्जैजरेटेड इंट्राकैनालिकुलर ग्रोथ पैटर्न. इसके दो की फीचर्स होते हैं माइक्रोस्कोपी के: बिनाइन एपिथेलियल कंपोनेंट एंड स्ट्रोमल हाइपरसेलुलैरिटी. हाइपरसेलुलैरिटी मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स. ग्रेडिंग की अगर बात करें तो ग्रेडिंग है बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रोमल कंपोनेंट. अब स्ट्रोमल कंपोनेंट कैसा है उसके बेसिस पे हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं कि लो ग्रेड विच लो ग्रेड फाइलोड्स विच आर आइदर बिनाइन, हाई ग्रेड फाइलोड्स दैट आर मेलिग्नेंट. अब बिनाइन है तो क्या होगा? सेलुलर ज्यादा होगा, माइटोटिक फिगर्स होंगे. हाई ग्रेड का मतलब क्या होगा? कि हाइपर सेलुलर स्ट्रोमा होगा, माइटोटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज इट इज मेलिग्नेंट, एंड प्लियोमॉर्फिज्म विच इज अ फीचर ऑफ द मेलिग्नेंसी. Okay, so let's quickly revise what we have studied till now. फाइब्रोएडिनोमा का मतलब, फाइब्रो मींस फाइब्रस, एडिनोमा मतलब क्या है? ट्यूमर है ऑफ अ ग्लैंड. मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है. एज प्रीडोमिनेंट 20 to 30 इयर्स. इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा लोब्यूल्स के अंदर होता है. क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? पाल्पेबल एंड फ्रीली मूवेबल मास. फ्रीली मूवेबल मास है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट माउस. कहाँ पे दिखता है? ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन. देन वी टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? कि स्फेरिकल नोड्यूल्स होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, फ्रीली मूवेबल होता है. मोबिलिटी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इट इज नोन एज ब्रेस्ट माउस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कट सेक्शन के अंदर कैसा होगा? रबरी होगा, ग्लिसनिंग ग्रेइश वाइट होगा, राइट? उसके बाद माइक्रोस्कोपी की बात करें तो फाइब्रोएडिनोमा में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लाइक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है. किसके अंदर हाइपरप्लेजिया होता है? डक्ट लाइक के अंदर होता है कि फाइब्रस में होता है? डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइपरप्लेजिया होता है. और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? डेलिकेट होता है, सेलुलर होता है और कंसिस्ट करता है मोस्ट ऑफ द ट्यूमर. माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन पेरिकैनालिकुलर, इंट्राकैनालिकुलर, पेटेंट ल्यूमन होता है और कंप्रेस्ड ल्यूमन होता है, राइट? उसके बाद बात करें फाइलो ट्यूमर. फाइलो ट्यूमर कैसा होता है? सर्कमस्क्राइब्ड बिकॉज कैसा है? बिनाइन है. बाइफेजिक. बाइफेजिक क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है और मेसेंकाइमल कंपोनेंट भी होता है. उसके बाद हम जो है इसके अंदर क्या होते हैं? एपिथेलियल कंपोनेंट. एपिथेलियल कंपोनेंट उसके बीच लेफ्ट में क्या होता है? हमारा मेसेंकाइमल कंपोनेंट होता है, राइट? उसके बाद क्या बात करेंगे? उसके बाद ये भी पाल्पेबल मास होता है. मॉर्फोलॉजी में कैसा होगा? बिनाइन फाइलोड हो सकता है या फिर मेलिग्नेंट फाइलोड हो सकता है. और क्या बात करेंगे? कट सरफेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कट सरफेस. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है? वर्ल्ड पैटर्न मिलता है. वर्ल्ड पैटर्न विच रिजेंबल्स एज लीफ बर्ड्स. माइक्रोस्कोपी की बात करें, माइक्रोस्कोपी के अंदर बिनाइन एपिथेलियल कंपोनेंट होता है और स्ट्रोमल हाइपरसेलुलैरिटी होती है. ग्रेडिंग के बारे में बात करें तो लो ग्रेड फाइलोड्स होते हैं, हाई ग्रेड फाइलोड्स होते हैं. आई होप these two topics are clear to you. I hope, and it is very simple. It is not at all hard.
So I hope I was able to make you understand. Thank you very much. Thank you for watching my video.